تو سلامت وطن تا قیامت وطن یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ملک بھر میں تقریبات، عمارتوں، گلی کوچوں، بازاروں میں جشن چراغاں اور سبز رالی پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں آتش بازی، دن کا آغاز نماز فجر میں ملکی ترقی اور یکجہتی کی خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے توپوں کی سلامی دی۔ یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ جشن آزادی، چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پرچم کشائی کی تقریبات، وزرائے اعلیٰ، گورنرز کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی تقریب میں امریکہ، ایران اور افغانستان کے قونصل جنرلز کی خصوصی شرکت۔ سول سیکریٹریٹ پشاور میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی۔ نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں جشن آزادی کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اسپیکر ایاز صادق شریک تقریب کے مہمان خصوصی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار تھے۔ میر سرفراز بگٹی نے تقریب کا افتتاح کیا۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے تقریب، پرچم کشائی۔ گلگت بلتستان میں بھی یوم آزادی پاکستان ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ گورنر مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر کی شرکت۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سبز لالی پرچموں کی بہار، شرکا نے یکزباں ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جیوے جیوے پاکستان کے فلک شگاف نعرے، رینجرز کے شیر دل جوانوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ پنجاب رینجرز کے دستے میں خواتین اہلکار کی بھی شرکت۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بارے قوم کو جلد خوشخبری ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا، بجلی بلوں میں کمی کے بغیر صنعت اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کے بل کم کیے بغیر گھریلو صارفین کو تسکین نہیں مل سکتی۔ مہنگائی اور بجلی بلوں سے عوام پریشان ہیں۔ حالات یہاں تک کیسے پہنچے، اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ خون کے آخری قطرے تک مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں کمی کرنے کے لیے جان لڑاؤں گا۔ ہمیں احتساب کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا، قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہے کیا زندگی مانگ کر گزارنی ہے یا اس خواب کی طرح جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا۔ دشمن ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ نوجوان خود کو فساد، انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ صدر مملکت کا یوم آزادی پر عوامی ترقی، ملک خوشحال بنانے کا عزم۔ اپنے پیغام میں کہا، جشن آزادی پر عہد کریں، ترقی کے لیے کام اور ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ مسلسل توجہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور معاشی استحکام پر مرکوز۔ پاکستان کے لیے ان گنت قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کی اتحاد، سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے پرعزم ہو کر کام کرنے کی ضرورت۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آزادی اور خود مختاری کے لیے قربانیاں دیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا، پاکستان بڑی قربانیوں کا ثمر، مل کر اس ملک کو عظیم طاقت بنائیں گے۔ آزادی کی حفاظت میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وطن عزیز کے جری جوانوں کو سلام۔ ارشد ندیم بنے گورنر سندھ کے مہمان۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی تقریب، ارشد ندیم بھی شریک۔ کامران ٹسوری کا ارشد ندیم کے لیے 20 لاکھ روپے اور ستارہ امتیاز کا اعلان۔
कहा अरशद नदीम को आज से शेर पाकिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। फख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। अरशद नदीम की वालिदा और कोच को भी सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर से इजहार तशक्कुर। कहा कराची वालों को देखकर मेरा दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिल चाह रहा है। शहर कायद के अवाम ने जो मोहब्बत दी, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं। जो हो गया वो हो गया, आने वाले वक्त का सोचें, फसाद से परहेज करें तो मुल्क जरूर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबको बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। अक़लियतों के हकूक़ के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। जिन्होंने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। मुल्क के आइन शिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा कौमी तराना इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स देता है। अवाम के वोट से आए हैं, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना है। नौजवानों से कौम की बड़ी उम्मीदें, इन उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पहली शर्त ईमानदारी। बदकिस्मती से कुछ ऐसे फैसले और पॉलिसियां बनी जिनसे नुकसान हुआ। मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शख्स काम करे, यही कायदे आजम और जुल्फिकार अली भुट्टो का विजन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हमने मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध के साथ परचम लहराया। हम सबको मिलकर एक होना है। आज के दिन हम अपने फलस्तीन के शोहदा को याद करते हैं। आलमी दुनिया और आलम इस्लाम सख्त नोटिस ले। कश्मीर में जारी हिंदुस्तान की बर्बरियत के खिलाफ भी अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। पशीन वो जिला है जिसके बुजुर्गों ने कायदे आजम का साथ दिया। यहाँ के मायदीन ने हमेशा पाकिस्तान से वफा की। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं हम सबकी पहली पहचान पाकिस्तान है। जिंदा कौमें जज्बे के साथ आजादी मनाती हैं। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। नौजवानों को गले लगाएंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतें नौजवानों को अपने करीब करेंगी। हम बलोचिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम जेर हिरासत। हसास इदारों के डिप्टी सुप्रीडेंट से तहकीकात। आईजी जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। जराये के मुताबिक तहकीकात के बाद डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। बानी पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल। एतजाज अहसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस को मखसूस नशिस्तों के केस में बैठना ही नहीं चाहिए था। बानी पीटीआई से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। फैसला करने के लिए केस सुनना लाजमी। जिसने केस सुना ही नहीं होगा वो फैसला कैसे करेगा। जिस मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों उसका मुस्तकबिल क्या होगा। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया था। साबिक वजीर जुल्फी बुखारी का दावा। कहा जनरल फैज हमीद का नाम पीटीआई के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत यह है सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ को जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया था। उन्होंने अपनी तरक्की के लिए लॉबिंग की। जुल्फी बुखारी के रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद की तहरीक इंसाफ को हिदायत देने की तरदीद। कहा कभी किसी रहनुमा ने ऐसी बात नहीं की कि फैज हमीद ने किसी को कोई हिदायत दी हो। कोर कमेटी या किसी भी कमेटी को जनरल फैज हमीद या किसी और जनरल ने कोई हिदायत नहीं दी। सानेहा 9 मई में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई मुलव्विस। जनरल बाजवा बानी पीटीआई के सियासी गॉडफादर और फैज हमीद सियासी चचा थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई ऑफिस से लैपटॉप मोबाइल फोन से सारी मालूमात मिली होंगी। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं कि लोग खुद गए। जब तक सपोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाकया नहीं हो सकता। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को फ्री हैंड दिया हुआ था। दूसरे बेनिफिशियरी बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई फैज हमीद ने आर्मी चीफ की तैनाती बारे साजिशी माहौल बनाए रखा। तहरीक इंसाफ के दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया।
फैज हमीद की जात का कोई मसला नहीं, मगर आज तक एहतसाब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का ही हुआ। ताकतवर तबकात का बराबर एहतसाब होना भी जरूरी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैज हमीद के बारे कार्रवाई का वेलकम। कहा जो फौज पर तनकीद करते थे अब उनको मालूम हो गया, फौज अपने जनरल को भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। हाउसिंग सोसाइटी का केस आपके सामने, किसी को यह हक नहीं वो बिला वजह किसी बिजनेसमैन की फैमिली को उठाए, फिर 50% शेयर की डिमांड करे। बानी पीटीआई का वही इंजाम लगता है जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया। पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदरूनी खतरा है। महमूद खान अचकजई कहते हैं पाकिस्तान बन गया, कायदीन अहद और वफा का दामन थाम लिया। हम हुक्मरानी तो चाहते थे लेकिन नीचे लोगों तक मुंतकिल ना कर सके। पाकिस्तान आइन और पार्लियामेंट हमारे लिए सबसे मुकद्दम। सिंध की जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल हुई। हमारे अंदर भी करप्शन हो गई, पार्टियों में भी चंदे के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। पूछता हूँ क्या 700 रुपए दिहाड़ी में मजदूर घर चला सकता है? अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान इस वक्त भी हकीकी आजादी के तसव्वुर से महरूम। पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए काबिशें जरूरी। बाज़ अफराद अपनी सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी मुल्क खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा आजादी बड़ी नेमत है, गुलामी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमारे बुजुर्गों अबाउजदाद ने अजीम कुर्बानियां देकर वतन अजीज हासिल किया। यौम आजादी पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब। ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर और मुसल्ह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद की गई। मुसल्ह अफवाज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की यौम आजादी पर कौम को मुबारकबाद। कहा ये एक अहम मौका है जो मुसलमानों के एक अलहदा वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। पुरमसरत दिन पर मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्ह अफवाज का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़दार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। आजाद कश्मीर में यौम आजादी के मौके पर तकरीबात। मुजफ्फराबाद में नलोची पुल पर नौजवानों ने आजाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा 80 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया। पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। पैराग्लाइडर्स ने सब्ज हिलाली परचम को लेकर पैराग्लाइड का शानदार मुजाहरा करके शायकीन से दाद वसूल की। पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग समेत मकामी सकाफती खेल पेश किए गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज। पाकिस्तान ही भारत के तौसी पसंदाना अजाइम की राह में रुकावट। कश्मीर आवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। बलूचिस्तान की फिजाओं में यौम आजादी पर सब्ज हिलाली परचम की बहार। डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली। डेरा मुराद जमाली की रैली में अवाम की भरपूर शिरकत। कोहलू में रैलियां, कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिविल सोसाइटी ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल रैली भी निकाली। बख्तियाराबाद और लेहड़ी में भी जश्न आजादी की मुनासबत से रैली। पशीन शहर में शानदार रैली, सैकड़ों की तादाद में अवाम की कौमी परचम उठाकर शिरकत। कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की शानदार तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवादर, हब, गडानी और माड़ा पसनी में यौम आजादी तकरीबात। तमाम रिहायशी और सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद। गवादर मरीन ड्राइव से लेकर पश्चिम का चौक और एयरपोर्ट तक का रैली। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। जस्टिस मोहसिन अख्तर के अनी ने परचम कुशाई की। लाहौर हाईकोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्क मिल्लत की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने तकरीब से खिताब में कहा आज़ादी, इंसाफ की फरहमी और मुसावात को यकीनी बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। सिंध हाई कोर्ट में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने परचम कुशाई की और केक काटा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस का ग्रीन कोर्ट्स मुहिम का इफ्तिताह। दुनिया भर में यौम आजादी मुबारक की गूंज। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में यौम आजादी मनाया गया।
पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर ने कौमी परचम सर बुलंद किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी एम्बेसी में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने परचम कुशाई की। पुर्तगाल के सफारत खाना में भी यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। पेरिस के सफारत खाने में पाकिस्तानी सफीर ने कौमी परचम लहराया। सफारत खाने पाकिस्तान एथेंस यूनान में तकरीब, सफीर ने परचम कुशाई की। स्वीडन में जश्न आज़ादी के सिलसिले में कार रैली, शुरका का अशर नदीम को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में परचम कुशाई, केक भी काटा गया। काजाकिस्तान के पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब, पाकिस्तान के सफीर ने परचम कुशाई की। खातम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, अवाम के मुफाद और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए हमारे तामीरी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिल्ली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। गुज़श्ता 77 सालों से हमारे अवामी ताल्लुकात हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक की बुनियाद रहे, शिराकतदारी को मज़ीद वुसअत देंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त, फ्रीलांसर्स का काम ठप। अरबों डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट मुतासर, कंपनीज का ऑपरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर शुरू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रैफिक 30 से 40% डाउनग्रेड चल रही है। बेशतर वीपीएन ने काम करना छोड़ दिया। ई कॉमर्स से मुंसलिक अफराद मुश्किलात का शिकार। कौमी असम्बली की कामा कमेटी राय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नोटिस। चेयरमैन पीटीआई मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान तलब। वफाकी हुकूमत ने ओवर दी टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल। ओटीटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फॉर्म्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेना होगी। कम्युनिकेशन सर्विसेज को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम होगा। ओटीटी ऑथराइजेशन या लाइसेंस की मुद्दत 15 साल होगी। कंपनियां अपना डाटा मुल्क के अंदर महफूज बनाएंगी। पाकिस्तान 12% महंगाई के साथ एशिया का महंगा तरीन मुल्क। हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई अब भी एशियाई मुल्कों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर। बिजली बिलों ने घरों के किरायों की शरह को पीछे छोड़ दिया। टैरिफ में इजाफे की वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्क गिर एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली की कीमतों में 155% इजाफा देखा गया। दायमी माशी बहरान से दो चार होने के बायस तवानाई का शोबा दर्द सर बन गया। बिजली की खपत को 4 सालों में कम तरीन सतह पर धकेल दिया गया। लोग और कंपनियां बिन सोलर पैनल्स लगाने के हक में जा रहे हैं। जुलाई में रिहायशी सारिफिन के लिए क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दस्ती बम हमलों में एक शख्स जा बहा, 11 जख्मी, जख्मियों का इलाज जारी। पसरूर में जमीन का तनाजा, एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 5 अफराद की जान ले गया। फायरिंग से जावेद नामी शख्स, बीवी और 2 कमसिन बच्चियों समेत कत्ल। एक राहगीर खातून भी जाँ बहक। सूफी शख्सियत हजरत अब्दुल लतीफ काज़मी अल मारूफ बरी सरकार का 3 रोजा उर्स की तकरीबात शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर पोशी की।